أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين آمين اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ آسان نیکیوں کی سیریز میں آج ہمارا نیکسٹ ٹاپک ہے استغفار کرنا۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے استغفار کو گناہوں کے زہر کا تریاق بنایا ہے۔ جیسا کہ آپ کو پتا ہے نا کہ جب بھی کوئی زہر تیار کیا جاتا ہے نا، اس کا ایک تریاق بھی ہوتا ہے، اس کا توڑ، زہر کا توڑ۔ تو گناہوں کا توڑ کیا ہے؟ استغفار۔ کیونکہ جب کوئی شخص زہر پی لے تو اس کو زندگی مشکل میں پڑ جاتی ہے نا، پھر اس کی زندگی بچانے کے لیے اس دعا کا تریاق دینا پڑتا ہے، اس کو توڑ دینا پڑتا ہے، اس کو کوئی ایسے اسی جس نے زہر بنایا ہوتا ہے اس کے پاس ہی اس کا توڑ ہوتا ہے، تو وہ پھر بچ جاتا ہے بندہ۔ تو آپ یہ دیکھیے کہ گناہ تو ہر انسان سے ہو جاتے ہیں نا، تو گناہوں کا جو توڑ ہے، گناہوں کو جو ختم کرنے والی چیز ہے وہ استغفار ہے۔ استغفار کے معنی ہے اللہ تعالیٰ سے مغفرت مانگنا، ہر بد سے بدتر گناہ، ہر بد سے بدتر گناہ جو حقوق اللہ کے حقوق میں کمی ہو، توبہ استغفار سے معاف ہو جاتا ہے۔ اور کر رہی ہیں آپ میری بات کو کہ ہر بد سے بدتر گناہ جو حقوق اللہ ہو، یعنی اللہ کے حقوق سے متعلق ہو، وہ توبہ استغفار سے معاف ہو جاتا ہے۔ لیکن لہٰذا جب کوئی بھی گناہ ہو جائے، کبیرہ یا صغیرہ یا کبیرہ سرزد ہو جائے، تو فوراً توبہ استغفار کرنی چاہیے اور اس کی تلافی کرنی چاہیے۔ بلکہ اس کے جو استغفار ہمیشہ ہر وقت ہی کرتے رہنا چاہیے، اور بظاہر کوئی گناہ اگر سرزد نہیں بھی ہوا تو بھی استغفار کثرت سے کرتے رہنا چاہیے۔ ہر مسلمان جانتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گناہوں سے بالکل معصوم تھے، پاک تھے۔ اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں اللہ تعالیٰ سے روزانہ 70 سے زائد مرتبہ، یعنی زیادہ، 70 سے زیادہ مرتبہ توبہ استغفار کرتا ہوں۔ یہ بخاری سے روایت ہے۔ تو ایک حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد مروی ہے کہ جو شخص استغفار کی پابندی کرے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر تنگی میں آسانی کی راہ نکال دیتے ہیں۔ ہر تنگی میں، کوئی بھی مشکل ہو، ہر غم کو دور فرما دیتے ہیں، اور ایسی جگہوں سے اس کو رزق عطا فرماتے ہیں کہ جہاں سے اس کو گمان بھی نہیں ہوتا۔ لہٰذا چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے استغفار کرنے کی عادت ڈالنی چاہیے، اور دن میں کم از کم ایک مرتبہ استغفار کی ایک تسبیح تو ضرور پڑھ لینی چاہیے۔ کیونکہ استغفار جو ہے نا، دیکھیں روز قیامت بھی جو لوگ زیادہ کثرت سے استغفار اپنے ساتھ لے کر جائیں گے، وہ بہت خوش ہوں گے، وہ بہت خوش ہوں گے، انہیں فائدہ ہوگا جن کی گفتگو میں زیادہ استغفار شامل ہوگا، جو اللہ سے کثرت سے توبہ کرتے رہتے ہیں۔ اب دیکھیے کہ ایک جیسے دعا ہے سید الاستغفار۔ استغفار استغفار ہر زبان میں ہو سکتا ہے، لیکن اس کا مختصر جو ہے عربی جملہ یہ ہے کہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ میں اللہ تعالیٰ اپنے پروردگار سے ہر گناہ کی مغفرت مانگتی ہوں اور توبہ کرتی ہوں۔ استغفر اللہ بھی کہہ سکتی ہیں آپ بار بار، لیکن حدیث میں استغفار کی ایک اور مخصوص دعا جو آئی ہے، اس کے بہت زیادہ فضائل بیان ہوئے ہیں، جسے سید الاستغفار کہا گیا نا، یعنی استغفار کا سردار۔ جیسے آپ نے جتنی بھی استغفار کی ہیں، جتنی بھی استغفار کی تسبیح آپ پڑھتی ہیں، اس میں جو سب سے زیادہ سردار تسبیح ہے، سردار جو استغفار ہے، وہ اسے قرار دیا گیا ہے، اور وہ ہے استغفار جو سردار، اس سید الاستغفار۔ اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک بنعمتک علی وابوء لک بذنبی فاغفر لی ذنوبی فإنہ لا یغفر الذنوب الا انت۔ یا اللہ، آپ میرے پروردگار ہیں، آپ کے سوا کوئی معبود نہیں، آپ نے مجھے پیدا کیا، میں آپ کی بندی ہوں، اور میں حد الوسع آپ سے کیے عہد پر اور آپ سے کیے وعدے پر قائم ہوں۔ میں نے جو کچھ کیا اس کے شر سے آپ کی پناہ چاہتی ہوں۔ آپ نے جو نعمتیں مجھ کو عطا فرمائی، انہیں لے کر آپ سے رجوع کرتی ہوں، اور اپنے گناہ سے آپ کی طرف رجوع کرتی ہوں۔ لہٰذا میرے گناہ معاف فرما دیجئے، کیونکہ آپ کے سوا کوئی گناہوں کی مغفرت نہیں کرتا۔ یہ اس کا ترجمہ میں نے بتایا آپ کو، کہ آپ دیکھیے کہ اس استغفار کی جو ترجمے میں آپ دیکھیے کہ پہلے اللہ کی تعریف ہے
کہ اللہ آپ میرے परवरदिगार ہیں, آپ کے सिवा कोई माबूद नहीं, कोई इबादत के लायक नहीं, आपने मुझे पैदा किया, मैं आपकी बंदी हूँ, मैं अपने अहद और वादे पर कायम हूँ. कौन सा अहद? अहद और वादा जो अल्लाह से हमने किया हुआ है, अहद अलस्त. तो हमने अल्लाह से वादा किया हुआ है ना, आपने कुरान में पढ़ा होगा। तो देखिए कि और फिर अल्लाह से मैं सारे गुनाहों की तौबा करती हूँ जो मैंने की, और सारे गुनाहों का इकरार करती हूँ, और सारे नेमतों का इकरार करती हूँ कि अल्लाह तेरे सिवा फिर कोई मेरे गुनाहों को बख्शने वाला भी नहीं, लिहाज़ा तू मेरे गुनाहों को माफ़ कर दे। तो आप ये अपनी इसको अरबी ज़ुबान में भी पढ़ती हैं, और वैसे भी आप इस दुआ को अपने लफ्ज़ों में भी माँगती रहिए। हदीस में है कि जो शख्स, गौर कीजिएगा, जो शख्स, ये जो सैयदुल इस्तिग़फ़ार है, इसके बारे में हदीस में आता है कि जो शख्स ये कलमात पूरे यकीन के साथ सुबह के वक़्त कहेगा और शाम से पहले अगर उसका इंतकाल हो जाए, तो वो जन्नतियों में शामिल होगा इंशाअल्लाह। और जो शख्स ये कलमात रात के वक़्त पूरे यकीन के साथ कहे और सुबह से पहले उसकी उस वो फ़ौत हो जाए, इंतकाल हो जाए उसका, तो वो अहले जन्नत में से होगा। ये सही बुखारी से मैं आपको हदीस सुना रही हूँ। ख़ास तौर से रात को सोने से पहले चंद बार तमाम लोगों को ये चाहिए, आपको, मुझे, हम सबको, हम देखें आज हम करेंगे, अपने बच्चों को बताएँगे, अपने घरवालों को बताएँगे, तो उनकी भी आदत पुख्ता होगी। एक तो उनके हिस्से में सवाब होगा, उनके गुनाह धुलेंगे, दूसरा हमारे बताने से जब तक वो ये अमल करेंगे, आप हम जो बताता है उसकी भी नाम-ए-अमाल के नेकी में इज़ाफ़ा होता है। तो आज हमने रात को सोने से पहले अगर अपने दिल को ख़ास तौर पर अल्लाह की तरफ करके, अल्लाह की तरफ राग़िब करके, अपने दिन भर के जितने अमाल हमने किए हैं, जितने भी अमाल हमने किए हैं, हमने अल्लाह ताला का तसव्वुर करके हम उससे तौबा करके सोएँ। हम अल्लाह से माफ़ी माँग के सोएँ कि अल्लाह सुबह से लेकर रात तक हमने, अब आप देखिए कि पूरे दिन में हमसे कितनी ही गलतियाँ हो जाती हैं, जो हम चाहते तो नहीं है, लेकिन हो जाती है। कभी नमाज़ लेट हो जाती है, कभी नमाज़ में खुशू नहीं होता, कभी क़ज़ा हो जाती है, कभी झूठ निकल जाता है, कभी कोई चुगली, कभी कोई ना चाहते हुए कोई इस तरह की बात, कोई गीबत, कोई और भी छोटी-बड़ी हज़ारों बातें हो जाती हैं, जो इंसान चाहता तो नहीं है, लेकिन हो जाती हैं। तो उसके लिए तरीक़ाकार ये नहीं है कि हमने जो कहा ठीक कहा, नहीं, आप और मैं इस बात के पाबंद हैं कि हमें अल्लाह से हर वक़्त तौबा इस्तग़फ़ार करते रहना चाहिए। तो हमें हर रोज़, देखिए ज़िंदगी का एक दिन बहुत कीमती होता है ना, इस पूरे दिन में कितने लम्हे होते हैं और हर लम्हे का हमने हिसाब देना है। तो हम सॉरी, तो हमें करना ये चाहिए कि हम रोज़ाना जब रात को सोने लगते हैं, तो हमें चाहिए कि हम बड़े दिल से, बड़े अपने आप को तसव्वुर में जमा के और अल्लाह ताला से आजिज़ी के साथ तौबा इस्तग़फ़ार करें कि या अल्लाह, मैं इंसान हूँ, मुझे नहीं मालूम, मैंने चाहा तो नहीं, लेकिन हो सकता है चाह चाह के कुछ गलतियाँ हो गई हों, हो सकता है कि ना चाहते हुए कुछ गलतियाँ हो गई, कुछ गुनाह हो गए, तो आप मुझे माफ़ कर दें, और तौबा इस्तग़फ़ार करनी चाहिए, क्योंकि देखिए ज़िंदगी का कोई पता नहीं होता, अगली साँस का कोई पता नहीं होता। अक्सर हम सुनते हैं ज़िंदगी में कि फलाँ शख़्स तो रात को सोया, सुबह उठा नहीं, तो क्या पता कि उसने इस्तिग़फ़ार की या नहीं की। तो हमने इस चीज़ को अपनी आदत बना लेनी है। देखें, सोने से 2 मिनट पहले अगर हम ये दुआ माँग लेंगे, और या फिर हम सैयदुल इस्तिग़फ़ार अपने दिन में सुबह को और एक शाम को अपने अस्कार के साथ, जैसे फ़जर के वक़्त हम अस्कार पढ़ते हैं शाम को, तो उसमें अस्कार में ये है, ये दुआ है, जो अक्सर मैं आपके साथ शेयर भी करती हूँ, तो उसके अंदर ये दुआ होती है, तो आप इसको पढ़ेंगी, तो इसके फ़ायदे देखिए कि अगर हम इसको इस दुनिया से भी चले जाते हैं, तो फिर अल्लाह ताला इसका कितना ज़्यादा अजर देंगे, और रोज़े क़यामत वो लोग, उन देखिए जब बंदा इस्तिग़फ़ार करता है ना, तो उसके नाम-ए-अमाल से गुनाह मिटा दिए जाते हैं और उसकी जगह नेकी लिख दी जाती है। तो जब बंदा इस्तिग़फ़ार करता रहता है, तो फ़रिश्ते उसके गुनाह मिटाते रहते हैं, और फिर उसका नाम-ए-अमाल जो है वो साफ़ होता रहता है। तो ये एक सफ़ाई का काम भी करता है ना इस्तिग़फ़ार, ये एक सफ़ाई का काम करता है कि देखिए नाम-ए-अमाल से हम सब की ख़्वाहिश है ना, कि हम जब अपने 1 साल पीछे देखें अपनी ज़िंदगी को, तो हम चाहते हैं ना कि हमारे गुनाह मिट जाएँ। पता नहीं हमने हम जब हम मैच्योर होते हैं, हमें थोड़ी अकल आती है, हम थोड़ा दीन से जुड़ते हैं, तो हमें बहुत सारी चीज़ें पता चलती हैं, तो हम अपना पीछे सोचते हैं, हम कहते हैं हमने पिछला टाइम ऐसा नहीं गुज़ारा, तो उस पिछले टाइम में जो गलतियाँ हो गई, जो गुनाह हो गए, जो भी खताएँ हो गई, उसका तिर्याक क्या है, उसका तोड़ क्या है? इस्तिग़फ़ार। इस्तिग़फ़ार की कसरत करनी चाहिए, इस्तिग़फ़ार चलते-फिरते, उठते-बैठते, खाना पकाते, जिस वक़्त, और देखिए कि ये इतनी आसान नेकी है कि आप अस्तग़फ़िरुल्लाह, अस्तग़फ़िरुल्लाह, अस्तग़फ़िरुल्लाह कह सकती हैं, अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैह कह सकती हैं। आप इसके अलावा सैयदुल इस्तिग़फ़ार सुबह शाम देख कर, अगर आपको ज़ुबानी याद नहीं, पढ़ सकती हैं। आप अपने
बच्चों को भी ये बात बताइए, सब लोगों को ये बात बताइए कि एटलीस्ट रोज़ाना अगर जिस वक़्त आप तस्बीह कर रही होती हैं, तो अगर जैसे कि आपने रमज़ान में तस्बीहात भी करनी है, तो 100 दफ़ा सुबह और 100 दफ़ा शाम को इस्तिग़फ़ार की तस्बीह ज़रूर कीजिए। इससे ये होगा कि देखें, इंसान 100 दफ़ा तो 100 मर्तबा तो सारे दिन में गुनाह नहीं करता ना, अगर करता भी है तो उसके गुनाह अल्लाह ताला के हुक्म से इंशाअल्लाह अल्लाह ताला माफ़ कर देते हैं इस्तिग़फ़ार की वजह से। तो जो कसरत से एक जगह मैंने पढ़ा था कि रोज़े क़यामत एक एक ऐसा शख़्स होगा जो कि दुनिया में बहुत ज़्यादा इस्तिग़फ़ार करता था और बहुत ज़्यादा दुआ माँगता था कि अल्लाह मुझे क़यामत की हंगामा आराई से और क़यामत की उस सारी चीज़ से बचाना। तो अ, जो कि वो इस्तिग़फ़ार की कसरत करता था। तो मैंने किताब में पढ़ा कि वो शख़्स जो है, वो जब उठेगा तो उसको क़यामत के हंगामे को फ़ेस नहीं करना पड़ेगा। वो कहेगा मैंने तो सुना था कि यहाँ बड़ी कोई ऐसा सख्त दिन होगा और इस तरह होगा और बड़ा यहाँ पे चीखो-पुकार लगी होगी और जहन्नुम को लेकर आएँगे और ये, लेकिन यहाँ तो बहुत माहौल पुरसुकून है। तो 2 फ़रिश्ते उसको फ़ौरन थाम लेंगे और कहेंगे कि ये तुम्हारे लिए है, क्योंकि तुम इस्तिग़फ़ार की कसरत करते रहे हो और साथ-साथ दुआ भी करते रहे हो कि अल्लाह मुझे इस दिन की हौलनाकियों से बचाना। तो वो सब कुछ तो है, लेकिन अल्लाह ने तुझे बचा लिया। तो आप ये देखिए कि कितनी बड़ी नेमत है इस्तिग़फ़ार की, कि अगर इस्तिग़फ़ार इतनी बड़ी नेमत है कि जो गुनाहों को अल्लाह ताला उसकी बदौलत इस्तिग़फ़ार करने वालों के गुनाहों को धो डालते हैं, तो ये अल्लाह ताला ने हमारे लिए एक ख़ास नेमत अता की है। उसका ज़िक्र कुरान पाक में भी आता है कि आप अगर इस्तिग़फ़ार कसरत से करेंगे तो आपकी हर मुराद पूरी होगी, जो भी आपको मुश्किल होगी, आपके रिज़्क़ की, रोज़ी की, कोई भी परेशानी छोटी या बड़ी किसी भी किस्म की, उसके लिए इस्तिग़फ़ार जो है वो बेहतरीन दुआ है। तो आप इस इस्तिग़फ़ार को बिल्कुल कसरत से करते रहिए, आसान नेकी है, चलते-फिरते, उठते-बैठते, जिस वक़्त आपको ख़्याल आए और आप इसको पढ़ते रहिए और अल्लाह से बिल्कुल दिल लगाकर भी तौबा कीजिए और इसकी कसरत से इसकी तस्बीह भी कीजिए, अपनी ज़ुबान पर जारी रखिए। और जब एक तरीका मैं आपको और भी बता दूँ कि देखिए, बाज़ लोग इस्तिग़फ़ार तो करते रहते हैं, लेकिन जो अमल उनके अल्लाह के नापसंदीदा अमाल होते हैं, उन्हें नहीं छोड़ते। तो देखें, इस्तिग़फ़ार की कसरत भी करनी चाहिए और गुनाहों से भी बचना चाहिए, ठीक है? उन गुनाहों को जो कि आपको पता है कि ये अल्लाह ताला को बेहद नापसंद है। अब एक तरफ उस पे कहते रहें अस्तग़फ़िरुल्लाह, अस्तग़फ़िरुल्लाह और दूसरी तरफ आप वो भी करते जाएँ, ये बात तो ठीक नहीं है ना फिर, ये बात तो ठीक नहीं है। तो उसके लिए आप दुआ करें कि अगर कोई पुख्ता आदत है जो कि अच्छी नहीं है, तो उसके लिए दुआ करें कि अल्लाह मेरी ये आदत बदल दे, मेरी बुराइयों को नेकियों में बदल दे, मेरी खराबियों को खूबियों में बदल दे, मेरी जो भी हालात हैं उनको अच्छा कर दे, और फिर तौबा भी करें और अल्लाह से दुआ भी माँगे और कोशिश करें कि हर गुनाह के काम को छोड़ दें और इस्तिग़फ़ार की कसरत करें। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिक, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।